Hey, yeah, what's up, everybody? Welcome back to my channel. My name is Isha Verma. I am a CA Finance student. So I uploaded a demo video, which was a demo lecture video of how I studied audit from study material of chapter number 3, which was audit in automated environment. And I got many requests to please upload more such videos like that because I concise the entire chapter. मैंने पूरे chapter को बहुत अच्छे से concise किया था as per question and answer basis, and it almost covered the entire, almost क्या पूरा ही chapter covered था comprehensively. And so I decided to upload another video which is here that you will be watching. Unfortunately, I don't have that software जिसमें, because I'm still a student यार, आपकी तरह ही, तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ है ही नहीं जिससे मेरी वीडियो भी दिखे और पीछे बैकग्राउंड में PDF भी चले. So आगे आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल दिखाई देगी with my voice. So अभी के लिए फिलहाल उसे go through it and you will have better idea of how you can study by your own the study material of audit. And that's it. Now let's start it. Now let's get started. So let's start with the chapter now. It's chapter number 8, Audit of Consolidated Financial Statements. And as you all know that in the previous video also I explained the chapter in the question wise format, question answer format. एंड वो क्वेश्चंस बनाना आप खुद से सीखो. दिस इज़ अगेन अ डेमो वीडियो जहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. अगेन शुरू में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. इस पूरे चैप्टर में सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे कैसे ऑडिट करना है एक ऑडिटर को, इसके बारे में बात की गई है. उसकी ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बिज़नेस की, उस एंटिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सारी चीज़ों की बातें करी गई हैं. दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन जस्ट गिव अ रीड ओवरव्यू. तो हम क्या ही देखेंगे. इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है. एक तो आपका AS21 और एक है अपना इंड AS 110. पूरे चैप्टर में ये दो चीज़ें बार बार रिपीटेडली आएंगी. एक है AS21, एक है इंड AS 1110. Again, these paragraphs are like an introduction sort of, not important for examination. You can just see consolidated financial statements में क्या क्या include होता है. Again, वही सारी चीज़ें, balance sheet, profit and loss, cash flow, change in equity and any other notes that form part. Again, these are not important. Now come here. आपका पैराग्राफ नंबर 1.1 ये कहता है कि क्यों कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी है, कहाँ लिखा है. तो ये लिखा है आपके सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 4 में. ये दो सेक्शंस को आपको यहाँ पे हल्का हल्का दिमाग में याद रखना है. 139 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 4 of the Companies Act 2013, which makes it mandatory for companies to make consolidated financial statements. ठीक है. You can also read these lines also कि आपको AOC फॉर्म भी भरनी पड़ेगी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे AOC 1 में. उसके साथ साथ आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अटैच करना पड़ेगा इफ़ एप्लीकेबल टू योर ओन कंपनी. अब यहाँ पे एक बात है जो इम्पॉर्टेंट है. वो है ये वाली बात. ये वाली बात कहती है कि जहाँ जहाँ पे इंड AS 21 लगना चाहिए था बट हमने नहीं लगाया बिकॉज हमें अलाउड है नहीं लगाना. आगे हम कंडीशन देखेंगे कि यहाँ पे इंड AS 21 लगना चाहिए था पर हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें अलाउड है, कोई कंडीशन है. तो जहाँ पे भी ऐसा होगा उस वहाँ पे कंपनी को मेक श्योर करना है कि जो नॉर्मल बैलेंस शीट बनी है ना स्टैंड अलोन, वो सारे शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनी है. तो आप इस लाइन को रीड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल 2014, the consolidated financial statements of the company shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 to the Act and applicable accounting standards.
However, a company which is not required to prepare consolidated financial statements under accounting standards, it shall be sufficient if the company complies with provisions of consolidated financial statements in Schedule 3 of the Act. मतलब कि जहाँ जहाँ पे इंड AS 21 कहता है कि आपको कंसोलिडेशन करना है, लेकिन फिर भी कहीं से आपको रिलैक्सेशन मिल गई है कि उसी लॉ में, तो आप अगर नहीं बना रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर नहीं भी बना रहे कंसोलिडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शेड्यूल 3 आपका अकॉर्डिंगली फॉलो होना चाहिए. अब ये वाली चीज़ मैंने क्यों अंडरलाइन कराई है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आया था एंड बहुत लोगों ने सारा आंसर लिखा था बट ये लास्ट पैराग्राफ नहीं लिखा था, जिसकी वजह से मार्क्स कट गए थे. एंड आई थिंक ये बैक क्वेश्चन में भी आप देखना, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कोई होगा, मैं देखती हूँ, देख के बता दूँगी, 1 या 2 ही है शायद. तो आप उसमें देखना कि आपका आंसर तभी सही होगा जब ये पार्ट आप लिखते हैं, जब आप उस AS के अकॉर्डिंग अलाउड होते हैं कंसोलिडेशन नहीं करने को, तब आपको मेक श्योर करना है कि ये पैराग्राफ आप एग्ज़ाम में लिख कर आओ. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ. तो अब ये देखिए, ये 3 कंडीशंस हैं जो अगर आपकी कंपनी फुलफ़िल हो जाती है, अगर ये एंटिटी फुलफ़िल करती है, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ये तीन कंडीशंस हैं, तीनों में से तीनों फुलफ़िल होंगे तभी उस एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. इन तीनों के बीच में और नहीं लगा है. इसका मतलब तीनों ही कंडीशंस फुलफ़िल होने चाहिए. ठीक है. अब जिस कंपनी की बात कर रहे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं. ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी सब्सिडियरी है A, और सब्सिडियरी A की भी एक और सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी B. अब ये जो प्रोविज़न है, ये तीनों वाला, ये किस पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है सब्सिडियरी A पे, कि सब्सिडियरी A कब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकती, कब उसे अलाउड है नहीं बनाना. तो उसके लिए 3 कंडीशंस आपको दी गई हैं और तीनों को फुलफ़िल करना ज़रूरी है. तीनों कंडीशन में पहला कंडीशन कहता है कि आपकी जो सब्सिडियरी है, मतलब सब्सिडियरी B, या तो वो होली ओन्ड है या पार्शियली ओन्ड है, एंड उसके सारे मेंबर्स को, इंक्लूडिंग वो वाले मेंबर्स भी जिनको वोट देना इंटाइटल्ड नहीं है, उनको अपने रिटर्न में सब्सिडियरी A ने रिटर्न में इनको दे दिया है कि हम जो है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे हैं, और इनके मेंबर्स कह रहे हैं कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस केस में सब्सिडियरी A चाहे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी, पर बाकी दोनों भी कंडीशंस फुलफ़िल होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि इट इज़ अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज़ आर नॉट लिस्टेड, आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन या आउटसाइड इंडिया. ये जो सब्सिडियरी B कंपनी है, ये ऐसी कंपनी है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी लिस्टेड, या खुद भी लिस्टेड नहीं है. इनफैक्ट सब्सिडियरी A, दोनों की ही बात हो जाएगी, दोनों में से कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या गोइंग टू बी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए. ठीक है. एंड थर्ड कंडीशन कह रहा है कि ठीक है, आप सब्सिडियरी A नहीं बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट नहीं बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट होल्डिंग है, मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला होल्डिंग है, वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हमेशा बनाएगी, तभी आपको अलाउड है कि आप नहीं बनाएंगे. समझ रहे हो? मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि सब्सिडियरी B का सारा इन्फॉर्मेशन सब्सिडियरी A में ऑलरेडी होगा, तो जब H अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडियरी B का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होएगा. तो इस केस में 2 बार कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार H भी बनाए, एक बार A भी बनाए. ठीक है. तो ये 3 कंडीशंस अगर फुलफ़िल होती हैं तो सब्सिडियरी A को अलाउड है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए. Let's move on to the next topic. आप अगेन ये सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट है.
हमारे पास एक और आ गया, हमारे पास एक और एंटिटी ऐसी आ गई जहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इज़ लाइक ओके। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, An investment entity need not present consolidated financial statement if it is required in accordance to paragraph number 31 of Ind AS 110 to measure all the subsidiaries at fair value through profit and loss. A parent shall determine whether it is an investment entity or not. अगर कोई एंटिटी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उसे अलाउड है कि वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाए। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना बनाने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट एंटिटी होना ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट एंटिटी होने के लिए इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। यहाँ पे एक कंडीशन की बात हो रही है। पहला कंडीशन कह रहा है कि वो जो कंपनी है, वो जो एंटिटी है, इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर्स। ऑफकोर्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ करती है। नंबर 2, वो जो इन्वेस्टमेंट के मिले फंड्स हैं उसको या तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए यूज़ करती है, या इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए यूज़ करती है, या फिर रिटर्न्स के लिए, या फिर दोनों में से दोनों चीज़ों के लिए। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो या तो कैपिटल अप्रिसिएशंस के लिए रखे गए। कैपिटल अप्रिसिएशंस मतलब आज मैंने 20,000 का खरीदा और कल को उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं 40,000 का बेच दूंगा, मेरे को 20,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल अप्रिसिएशन। एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, उस पर कोई परसेंटेज का रिटर्न आ रहा है। एंड लास्ट कंडीशन ये है कि वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू बेसिस पे वो करती है, जज करती है, इवैल्यूएट करती है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो जाएगा तो ये हो जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगेन ये क्वेश्चन शायद से दिसंबर 21 में आया हुआ है, तो यू कैन लाइक फॉर नाउ कंसिडर इट not very important for your examinations, but definitely consolidated financial statements is one of those chapters जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इस क्वेश्चन का आपके लिए इस टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, सो यू कैन स्किप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करता है टेम्पररी एक्विजिशन की, ठीक है, टेम्पररी कंट्रोल की। अब ये टेम्पररी कंट्रोल क्या होता है? सपोज ए ने होल्ड किया लाइक 55% इन बी। ये कब किया? सपोज अप्रैल में किया, और फिर क्या किया, अक्टूबर आते आते इन्होंने पूरा 55% सेल कर दिया, ठीक है। तो मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर से मिड ईयर तक आपके पास उस कंपनी का कंट्रोल था, एंड एंड ईयर तक आपका वो कंट्रोल छूट गया। दिस इज़ कॉल्ड टेम्पररी कंट्रोल। नाउ इन केस ऑफ टेम्पररी कंट्रोल, दोनों AS और इंड AS अलग अलग बातें कहते हैं। जो अपना AS है, इट सेज कि टेम्पररी कंट्रोल अगर होएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बनाओ। अगर सब्सिक्वेंटली सेल हो जा रही है तो मत बनाओ, नो प्रॉब्लम। पर ऐसी कोई भी कंसेप्ट जो है इंड AS 110 में नहीं है। मतलब इंड AS 110 कहता है कि चाहे कंट्रोल 1 डे का क्यों ना हो, सिर्फ एक दिन का ही कंट्रोल क्यों ना हो, तुम्हें CFS बनानी पड़ेगी। सो दिस इज वेयर बोथ द इंड AS एंड AS दे कॉन्ट्राडिक्ट। तो आप देख सकते हैं, ऐसा पढ़ सकते हैं ऑल दीज कि टेम्पररी कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और AS 21 कहता है एक्सक्लूड कर लो कंसोलिडेशन से, लेकिन AS 110 कहता है कि नहीं, आपको कंसोलिडेशन बनानी पड़ेगी। एंड
इसी वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि क्या आपको कंसोलिडेशन करनी है नहीं करनी है, तो उस केस में रिमेंबर आपको ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पिछले पेज पे मार्क कराया था कि एज पर सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 कि जहाँ जहाँ पे कंपनी को अलाउड है कि कंसोलिडेशन ना करे, वहाँ पे उसको मेक श्योर करना है कि वो शेड्यूल 3 के प्रोविजंस को फॉलो करे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नाउ। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगेन आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन होएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। तो आप पेरेंट एंटिटी, आपको होल्डिंग सब्सिडियरी में पता है कि पेरेंट एंटिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू जस्ट राइट यहाँ पे व्हाट इज या व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है जहाँ पे पेरेंट का एंटिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने को कह रहा है या कुछ भी, तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा ना थोड़ा केस स्टडी टाइप का आ जाता है कि 2 लाइन में बताया जाता है कि मिस्टर ए इज़ गोइंग टू ऑडिट द फर्म एंड द फर्म इज़ ऑडिटर एन एंटिटी जो कि होल्डिंग है सी कंपनी का, एंड in regard with this situation mention the responsibilities that a parent entity has towards auditor। कुछ भी इस तरीके से आपको केस स्टडी 2 लाइन की दी जा सकती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें। एंड बहुत इजी है इसका आंसर। आप तो इसको पहले तो ऐसे कर लो, लिख लो इसको आइडेंटिफाइंग, और इसके 3 हाथ बना दो। ठीक है, आप देख सकते हो आइडेंटिफाइंग से 3 क्वेश्चंस है, 3 आंसर्स है। आइडेंटिफाइंग 2 दिख गए, और आइडेंटिफाइंग ये रहा। ठीक है, 3 है। तो आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स लिख लो, एक लिख लो आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एंड आइडेंटिफाइंग सेगमेंट्स। 3 तो आपके आइडेंटिफाइंग से हो गए। ओके, और फिर इसके बाद आप 3, ये तो बहुत इजी से हैं कि ऑब्टेनिंग एक्यूरेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपोनेंट्स, मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स, हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप कन्वर्शन। मीनिंग बता देती हूँ। मीनिंग यही है कि अगर जो पेरेंट कंपनी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे ऑडिटर को। दूसरी बात कि जब वो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं कंसोलिडेशन में तो वो सही एडजस्टमेंट्स करें। तीसरी बात, हार्मोनाइज करें अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपनी अगर कोई और मेथड ऑफ यूज़ कर रही है इवैल्यूएशन के लिए, जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है वो कोई और मेथड यूज़ कर रही है, तो इस मेथड को हार्मोनाइज करें ताकि वो एक बैलेंस शीट में फ़िट हो पाए। गैप कन्वर्शन मतलब अगर आपकी कोई भी कंपोनेंट जो है इंडिया के बाहर की है जो गैप को फॉलो करती है, तो गैप के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके पहले इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग लाएं। तो दीज आर 3 थिंग्स आइडेंटिफाइंग से रिलेटेड, एंड 3 बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो यूजली अगर आपने कभी FR पढ़ा होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ये चीज़ें तो हमेशा ही होती हैं। So now let's move forward. Now we have the next topic, which is
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। अगेन आपके क्वेश्चंस ऐसे पैराग्राफ से बन के नहीं आएंगे, लेकिन अगर पैराग्राफ्स के नीचे आपको कहीं पे भी बुलेट पॉइंट्स बन रहा है तो उस बुलेट पॉइंट से ज़रूर क्वेश्चन बन के आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो आपके दो यहीं से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बन गए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट बना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बन रहा है। तो आगे चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ आपको खेलना है, ये बॉक्स कोई पढ़ के नहीं जाएगा क्योंकि हमें लगता है ये बॉक्स तो फालतू की चीज़ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बट अगर आपको बुलेट पॉइंट्स दिख गए, ये वाले ऐसे बुलेट पॉइंट्स अगर आपको दिख गए तो फटाफट से इसके ऊपर वाले लाइन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन फ्रेमिंग कर लो और बी रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, वो आ सकता है। ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग लेट्स मूव ऑन टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लैश ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये दोनों में से कोई भी वर्ड दिख गया तो आपको यही आंसर लिखना है, और यही आंसर क्या है? टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर। क्या ये ट्रू एंड फेयर है? नंबर 3, फिर टू इंक्वायर इनटू मैटर्स आर स्पेसिफाइड इन 143 सबसेक्शन 1। आप एक बार देख लेंगे 143 सबसेक्शन 1 कंपनीज ऑडिट में आपने पढ़ा होगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 143 सबसेक्शन 3 भी वहीं पे पढ़ा है, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत बेसिक्स है। एंड इनफैक्ट ये दोनों सेक्शंस तो हमेशा याद रखो, क्योंकि ये ना जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर आएगा तो आपको ये दोनों पॉइंट्स तो हमेशा दिखेंगे, ये दोनों सेक्शंस हमेशा दिखेंगे, चाहे वो PSU के में जाओ, चाहे वो कहीं भी जाओ, NBFC वाले चैप्टर में चले जाओ, ये वाले दो सेक्शंस हमेशा रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर के केस में। एंड लास्ट थिंग, CFS बनाने में जो जो ज़रूरत है वो कंप्लाई हुआ है या नहीं, ये भी ऑडिटर को देखना है। आगे बढ़ते हैं, यू कैन स्किप दीज। अगर आप सारे बुलेट पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये 4 नंबर से कम का दिख रहा है, मतलब 3 बुलेट पॉइंट्स, यू कैन कम्प्लीटली इग्नोर दैट फॉर योर थियरी पार्ट। आप फिर क्या कर लो, इसको एक बार MCQ के लिए पढ़ लो, अगर इम्पॉर्टेंट लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो यू कैन स्किप। लेट्स डू ऑडिट कंसिडरेशन। ऑडिट कंसिडरेशन के लिए बस ये कहना है कि जो आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट एंड इट्स components using consolidation procedures prescribed in accounting standards under applicable financial reporting framework। मतलब आपको ये समझ तो आ ही गया कि जो भी हम कंसोलिडेशन करते हैं वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि क्योंकि हमारा जो होल्डिंग अलग है, सब्सिडियरी अलग है, अब सब्सिडियरी का ऑडिटर भी हो सकता है अलग हो, होल्डिंग का ऑडिटर अलग हो, तो जब हम कंसोलिडेशन का ऑडिट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें दूसरे ऑडिटर के वर्क को यूज़ करना पड़े, तो वो यहाँ पे लिखा है मे यूज़ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। सेकेंड में अगेन दिस इज़ नॉट लाइक इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट्स थे, यू कैन जस्ट रीड इट वंस फॉर MCQ, कैन स्किप ऑल दीज, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगेन देखो ये बुलेट पॉइंट्स दिखे और मैंने क्या बोला, 3 से ज़्यादा दिखे, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, इन ऑर्डर टू डिटर्मिन मटीरियलिटी द ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाट। ठीक है, ये है यहाँ का क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटर्मिन मटीरियलिटी द ऑडिटर शुड कंसिडर व्हाट। ठीक है, तो मटीरियलिटी चेक करने के लिए, मटीरियलिटी कितना है, क्या है, उसको चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या कंसिडर करना चाहिए। अब देखो मटीरियलिटी मतलब क्या, कितने अमाउंट का इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप एज अ होल का देख सकते हैं। मतलब आप, ये हो गया होल्डिंग, इसके 2 सब्सिडरीज़ हैं, इस सब्सिडरी का भी एक और सब्सिडरी है, तो एज अ ग्रुप पूरे एज अ होल में देखो कि क्या मटीरियलिटी का लेवल है।
कितना चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि ये ग्रुप लेवल पे देख लो। ग्रुप लेवल मतलब ये H है और यहाँ पे 2 S है, 2 सब्सिडरी हैं। अब यहाँ सब्सिडरी के 3 S हैं, तो ये एक लेवल हुआ, ये एक लेवल हुआ। तो एक लेवल पे मटीरियलिटी आप चेक कर सकते हो, ये एक लेवल हुआ, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट कहता है कि ईच कंपोनेंट का अलग अलग मटीरियलिटी भी हो सकता है। तो अपना H है, S है, S है, S के 2 थे, तो हर का अपना अपना मटीरियलिटी भी हो सकता है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट में कह रहा है कि आपको कंफर्म करना पड़ेगा ऑडिटर को इंडिपेंडेंस, कंपोनेंट ऑडिटर का प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो हैज़ टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर। जो भी कंपोनेंट का ऑडिटर है, कंपोनेंट का ऑडिटर मतलब जो अपना सब्सिडरी का जो ऑडिटर है, सब्सिडरी का जो ऑडिटर है, ये सब कंपोनेंट का ऑडिटर होता है, ठीक है। वो ऑडिटर एथिक्स को फॉलो कर रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा फॉर मटीरियलिटी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, यू कैन स्किप दी अदर पार्ट्स। यहाँ पे आ जाओ। अगेन ये दिखे ना 4 बुलेट पॉइंट्स, यही है सीक्रेट ऑडिट पढ़ने का। आपको पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ने, पता है ये कितना बड़ा चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ लाइक आई थिंक कितने पेजेस का है, देख लेती हूँ एक बार ये चैप्टर 25 पेजेस का है, पर आपको सिर्फ वही पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसी तरीके के 4-4 बुलेट पॉइंट्स वाले या 5-5 बुलेट पॉइंट्स वाले। एंड उसके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम कर लेना है। जब आप क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में 10 क्वेश्चंस बन रहे थे। अब उन्हीं 10 क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, और यही किया था मैंने। दैट हेल्प्ड मी स्कोर गुड मार्क्स इन ऑडिट। लेट्स मूव ऑन। द ऑडिटर शुड मेक प्लान्स अमंग अदर्स फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। प्लान्स की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा प्लान बिफोर कमेंसिंग ऑडिट ऑफ CFS, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आया तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। अब देखो, जब भी क्वेश्चन ऑडिट का ना प्लान की बात करता है, ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड तो हमेशा ही होता है। आप प्लान तभी करोगे ना, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उस सिचुएशन को, राइट। आप अपनी पढ़ाई की प्लानिंग कैसे करते हो, क्योंकि आप अपने सिचुएशन को पहले एनालाइज करते हो कि मेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, उसको मैं कैसे कैसे डिवाइड करूँगा, क्या क्या करूँगा। तो पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है चीज़ों की। तो यहाँ पे क्या बताया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर, कि कैसे कैसे ग्रुप बना हुआ है। होल्डिंग ऊपर है, उसके नीचे 2 सब्सिडरी है कि 3 सब्सिडरी है कि 4 सब्सिडरी है। ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू फर्स्ट टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। द सेकेंड थिंग, आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जब भी प्लान की बात आती है आपको ये वर्ड्स तो दिखते ही होंगे, नेचर, टाइम, एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर आपको कितना एक्सटेंड ऑफ दूसरे का वर्क यूज़ करना है, इसको भी प्लान में जोड़ना पड़ेगा। एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म्ड, बहुत इजी है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद कर लो या कोई कोड वर्ड बना के याद कर लो, कैसे भी कर लो। चलो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या था, अब तक कितने क्वेश्चंस किए, अब तक हमने किया है पहला कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट कंपनी की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की। फिर हमने अभी किया मटीरियलिटी वाला, प्लान कैसे बनाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कंप्लीटनेस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक ऑडिटर को। तो इसके लिए आप एक कर लो रिव्यू, और इसके बना दो 5 हाथ या 6 हाथ, और इसमें लिख लो रिव्यू हिज वर्किंग पेपर, रिव्यू हिज पेरेंट वर्किंग पेपर, पेरेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। रिव्यू जॉइंट वेंचर्स JV, रिव्यू इन्वेस्टमेंट्स, अदर अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो रिव्यू करके 5 हेडिंग्स हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा आपको चेक करना पड़ेगा ये सब। अब देखो इसका मतलब तो बता दूँ एक बार, आप अगर कंप्लीटनेस देख रहे हो, कंप्लीटनेस
कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला है या नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा पुराने प्रायर ईयर्स के नोन कंपनीज के कंपोनेंट्स के वर्किंग पेपर्स, या पेरेंट का प्रोसीजर कंप्लीटनेस, मतलब ऐसा तो नहीं कि होल्डिंग कंपनी ने बताया ही नहीं कि उसकी एक सब्सिडरी थी डी सब्सिडरी और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है, उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा है। तो ये सब आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अरेंजमेंट्स देखने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डिंग कैसी है, क्योंकि शेयर होल्डिंग से आपको पता चल जाएगा कि इसकी अगर 50% शेयर होल्डिंग इधर है तो 50% और कहाँ है, तो गायब कहाँ है, वो ढूंढने में आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे भी 2 और है कि आपके क्या रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या चेंजेस आया है शेयर होल्डिंग में, तो ये सबसे आपको कंप्लीटनेस का पता चलेगा, ठीक है। अगेन ये सब जो है ना समरी है, जो हमने पहले पढ़ा था ना कि किस कंपनी को एग्जेम्प्ट है, मैंने बताया था लिस्टेड नहीं होनी चाहिए शेयर सेबी पे, या फिर उसके सारे मेंबर्स को हमने इंटीमेट कर दिया है कि हम CFS नहीं बनाएंगे। ये वही चीज़ की समरी है, यू कैन रीड इट इफ़ यू वांट, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये सब आप देख सकते हैं, कुछ है नहीं वैसे खास। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, तो कह रहा है कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरीज इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल 2015। तो अगर आपने कभी भी ये FR पढ़ा है, कंसोलिडेशन पढ़ा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो हम कंसोलिडेशन करते हैं वो लाइन बाय लाइन बेसिस पे करते हैं। लाइन बाय लाइन मतलब कि इसके PPE, मान लो A का PPE है और B का PPE है, तो दोनों ऐड हुए के टोटल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट का बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लाइन वाइज, मतलब अगर ये बनी है ना A की, ये है B की, तो हम लाइन वाइज ऐड करते हैं, तो ये लाइन बाय लाइन का मतलब हो गया। आपको पता है कि जब भी हम कंसोलिडेशन करते हैं तो या तो कैपिटल रिजर्व आता है या तो गुडविल आता है, एंड एक NCI नाम की चीज़ भी आती है। किसी ने अगर FR पढ़ा है तो उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकली जब ऑडिट करेंगे तो वही सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब जो हमारा मेथड है कंसोलिडेशन का, वो 2 टाइप का होता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड मर्जर मेथड एंड परचेज मेथड। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से मेथड को ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं इंट्रा ग्रुप, जैसे अनरियलाइज प्रॉफिट का, स्टॉक का, ये सारी डेफर्ड टैक्स का, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत जनरल चीज़ें ऐसी ही बताया, मतलब इस टॉपिक में हम बस ये पढ़ रहे हैं कि 103 या 1110 के अकॉर्डिंग क्या क्या करना पड़ता है। फिर आ गया एक्विजिशन फेयर वैल्यू, जो हम स्टेप एक्विजिशन की बात करते हैं उसकी बारे में हो रहा है, तो अगर आपने FR पढ़ा है तो हेल्प मिल जाएगी ना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ, आप पढ़ो इसको। MCQ ये कह रहा है डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब क्या होता है। डी फैक्टो कंट्रोल का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। आपको अगर इनडायरेक्टली कहीं से कंट्रोल मिल रही है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है वोटिंग राइट की, लेकिन आप फिर भी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं डी फैक्टो कंट्रोल, ओके। अब देखो हमारे जो कंसोलिडेशन के टाइम पे 2 टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट सिर्फ एक टाइम होता है, और वो होता है जब परचेज करते हैं तो या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व अराइज होता है, एंड सेकेंडली एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अराइज होता है। तो ये हमारे जो 2 चीज़ें हैं, ये क्या है, फर्स्ट ओकेजन पे होती है। फर्स्ट ओकेजन पे कब होती है, फर्स्ट ओकेजन पे। तो यू कैन जस्ट राइट इट हियर, इसको अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट ओकेजन। आप MCQ में पूछ सकता है विच ऑफ दीज विल बी फर्स्ट ओकेजन ओकेजन एडजस्टमेंट्स और नॉट। फिर ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए एक होता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, या दूसरा होता है NCI या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का एडजस्टमेंट होता है वो होता है करंट पीरियड कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स, या फिर
सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट्स, इसमें और चीज़ें की जाती है, जैसे कि देख लो यहाँ पे इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड, मतलब एडजस्टमेंट की जा रही है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन एसेट्स, स्टॉक वगैरह, डेफर्ड टैक्स, हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अगर दो अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ लोग फॉलो कर रहे हैं, वो कंपोनेंट्स फॉलो कर रहे हैं, उनको हार्मोनाइज करना, ठीक है, ओके। सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एडजस्टिंग वाले होते हैं, एक नॉन एडजस्टिंग वाले होते हैं। सब्सिक्वेंट मतलब कि आपकी बैलेंस शीट बन गई है और उस लेकिन अभी साइन वाइन नहीं हुई है, मतलब साइन होके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन सब से अभी अप्रूवल नहीं मिला है, एंड इस बीच में अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है जो पिछले बैलेंस शीट को इफ़ेक्ट करे तो उसको कहता है एडजस्टिंग, और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो इफ़ेक्ट नहीं करती तो उसको कहते हैं नॉन एडजस्टिंग, ठीक है। आप एक बार रीड कर लेना, नॉट इम्पॉर्टेंट, जनरल बातें कहिए कि क्या क्या ध्यान में रखना है। कोई अगर लोकल जो कंपोनेंट है वो गैप को फॉलो करता है तो आपको पहले गैप के अकॉर्डिंग उसके सारे ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगेन बुलेट पॉइंट्स हैं, एंड आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसके आने के चांसेस बन सकते हैं। अगर कुछ नया बनकर आता है तो यही सब बन के आएगा ना, कहाँ से आएगा क्वेश्चन। तो जो आए हुए हैं वो तो सब करके ही जाते हैं, जो नहीं आते हैं, नहीं आए हुए हैं, वो कोई करके नहीं चाहता, वही क्वेश्चन फ्रेम होकर आ जाता है। तो ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, ऑडिटर शुड इंटर आलिया, और क्या क्या ऐसा काम है जो ऑडिटर को करना चाहिए। तो इंट्रा ग्रुप के ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने चाहिए, वेरीफाई CFS हैव बीन प्रिपेयर्ड यूनिफॉर्म पॉलिसीज़, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा गैप से जो हार्मोनाइज हुआ है या नहीं, सारे गैप कन्वर्जन्स हुए हैं या नहीं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है या नहीं, ठीक है, वेरीफाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं। तो आपको ये सारी वेरिफिकेशन को एक बार रीड कर लो, लाइक अगेन न्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आने की चांसेस है। ये सब यू कैन स्किप, कुछ नहीं है। रिटन रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं आपको बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक लाइन में बताया जाए तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस इज़ सिमिलर टू अ डॉक्यूमेंट दैट विल सपोर्ट योर एविडेंसेस, या अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए आप डॉक्यूमेंट पे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लिखवा लेते हो कि क्या ये सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशंस आप कहाँ पे ले सकते हो, अगेन बहुत ऐसा लग रहा है काम की चीज़ नहीं है, बट जब एग्ज़ाम में न्यू क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो वो ऐसी अजीबो चीज़ों से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो आपको लगता है कि कहीं से इम्पॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ इंसिस्ट कि पढ़ो तो स्टडी मटेरियल से, और ऐसे ही पढ़ो क्वेश्चन वाइज कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन से क्या आएगा। तो ये आंसर आपको कब लिखना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो कि ये बताइए कि रिप्रेजेंटेशंस लेना ज़रूरी है, अगर ले सकते हैं तो किस किस इंसिडेंट्स पे ले सकते हैं। तो ये वो 4 कंडीशंस हैं, 4 इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आप WR ले सकते हैं टू वेरीफाई द कम्प्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। वही चीज़, कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी एक और D सब्सिडरी भी है जिसको आप छुपा के रख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस सब्सिडरी के बारे में बताना ही नहीं चाह रहे। दूसरा, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, तो आप अगर FR पढ़ेंगे तो सेगमेंट रिपोर्टिंग करके एक इंडेस है, तो वहाँ पे आपको बताता है कि एक सेगमेंट का रिपोर्ट करना कब इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आप WR ले सकते हैं एज एन एविडेंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के केस में ले सकते हैं,
एंड लास्ट केस में परमानेंट या करंट पीरियड एडजस्टमेंट्स के केस में ले सकते हैं WR। MCQ में भी आ सकता है इनफैक्ट कि इन फॉलोइंग में से किस में आप WR नहीं ले सकते हैं या ले सकते हैं। आपको 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सही दिखेंगे, एक गलत दिखेगा, तो यहीं से MCQ आता है। एंड देन यू ऑल से कि MCQ तो कहीं बाहर से ही आया, हमें नहीं पता। एंड वी हैव द फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, रिपोर्टिंग। तो मैं ना रिपोर्टिंग को इसी चार्ट के थ्रू बता देती हूँ क्योंकि आगे भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है जो आपका पेरेंट ऑडिटर है, जो होल्डिंग का ऑडिटर है, वही आपके सारे कंपोनेंट्स का भी ऑडिटर है। बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिपोर्टिंग कौन नहीं करेगा? रिपोर्टिंग यही करेगा, अपना होल्डिंग का जो ऑडिटर है वही करेगा। बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें वही करेगा, वही अकॉर्डिंगली ओपिनियन भी देगा, वही अकॉर्डिंग जो भी फेयर एंड ट्रू एंड फेयर व्यू है उसके बारे में अपने ओपिनियंस देगा। सेकंड केस में हो रहा है कि आपका जो ऑडिटर पेरेंट ऑडिटर है और कंपोनेंट का ऑडिटर है, दोनों सेम नहीं है। तो इस केस में पेरेंट ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर का काम यूज़ कर सकता है। कैसे? थ्रू SA 600, ठीक है। अब वो जब रिपोर्ट बनाएगा तो उसको वो बनाएगा SA 706 के अकॉर्डिंग, जहाँ वो अदर मैटर पैराग्राफ में ये हेल्प लिया है ऑडिटर का, ये सब बारे में बता सकता है। नेक्स्ट, जब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो गैप के अकॉर्डिंग बनी है, उस केस में ऑडिटर तब ऑडिट कर पाएगा जब वो गैप के स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल स्टेटमेंट्स में एज़ पर गैप के प्रिंसिपल्स, एंड तभी वो रिपोर्टिंग कर पाएगा। एंड इसके बाद वाले केस में कह रहा है कि जो ऑडिटर का रिपोर्ट है वो किसी और ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना है, GAAS के अकॉर्डिंग बना है। तो उस केस में भी यही करेंगे, GAAS को पहले कन्वर्ट कर देंगे अपने एसेज में और तब उसको उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। एंड लास्ट केस में कह रहा है कंपोनेंट ऑडिटेड ही नहीं है, जो छोटे छोटे सब्सिडीरीज है वो ऑडिटेड ही नहीं है। उस केस में SA 705 के अकॉर्डिंग या तो आप एडवर्स दोगे ओपिनियन या फिर आप दोगे मॉडिफाइड ओपिनियन। जो भी द केस बनेगा उन दोनों केस के अकॉर्डिंग आप ओपिनियन दोगे। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड द एंटायर चैप्टर क्वेश्चन वाइज। अब आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये तो आ गया मैंडेटरी है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर सिचुएशंस बताइए जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS मे नॉट अप्लाई। 3 सिचुएशंस बताए थे। पहला बताया था कि जब वो 3 कंडीशंस सारे सेटिस्फाई होंगे, दूसरे में बताया था अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और तीसरे में बताया था कि अगर वो टेम्पररी कंट्रोल है तो उस केस में AS 21 वाले केस में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। What are the current period transactions to be taken according adjustment के टाइम पे क्या अकाउंट में लेना है आपको पता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये आ गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी। फिर परमानेंट कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। गो थ्रू ऑल दीज केस स्टडी टू हैव एन आइडिया ऑफ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड मेक श्योर कि उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना जो जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी बन नहीं गए हैं, क्योंकि न्यू क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। या Thank you for watching this video. If you liked it, give it a thumbs up. Subscribe to my channel. You can find the notes and everything on my Telegram channel. The link is in the description box or in the I button above. नहीं, I button में नहीं डाल सकते. Sorry. The link is in the description box. Bye bye.